السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں ساتھیہ نور۔ میں ہوں بلال اسلم۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آغاز میں بات کریں گے ٹنڈو محمد خان میں حیدرآباد سے بدین جانے والی تیز رفتار مسافر کوسٹر کرین سے جا ٹکرائی۔ حادثے کے بعد کوسٹر بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں کوسٹر میں سوار 18 سے زائد مسافر شدید زخمی ہوئے، جبکہ حادثے کے باعث سڑک پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔ حادثے کے فوراً بعد مقامی افراد اور ریسکیو اہلکاروں نے امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے کوسٹر میں پھنسے زخمیوں کو باہر نکالا۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے سول اسپتال ٹنڈو محمد خان منتقل کیا گیا، جہاں ایمرجنسی وارڈ میں طبی عملہ زخمیوں کو علاج فراہم کر رہا ہے۔ حادثے کے باعث کرین کا ایک حصہ بھی شدید متاثر ہوا، جبکہ سڑک پر مقامی لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ کنڈیارو میں وین اور ٹرالر میں خوفناک تصادم، 2 مسافر جاں بحق جبکہ 12 زخمی۔ حادثے کے بعد امدادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ خوفناک حادثے نے علاقے کو سوگوار کر دیا، جبکہ زخمیوں کے علاج کا سلسلہ جاری ہے۔ نوشہر و فیروز میں کنڈیارو قومی شاہراہ پر مسافر وین اور ٹریلر میں خوفناک تصادم، 2 مسافر موقع پر جاں بحق جبکہ 12 زخمی ہوئے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے کے بعد امدادی ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے تمام زخمیوں کو طبی امداد کے لیے تعلقہ اسپتال کنڈیارو منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق زخمیوں کو اسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، تاہم حادثے میں جاں بحق دونوں افراد کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ سعیدین شاہ کے قریب بارش کے بعد پھسلن کے باعث وین کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم چکوال نے ریسکیو کی ٹیم کو فوری طور پر موقع پر روانہ کیا۔ اہلکاروں نے مقامی افراد کی مدد سے دونوں زخمیوں کو گاڑی سے باہر نکالا اور موقع پر ابتدائی امداد فراہم کی۔ دونوں زخمیوں کو مزید علاج کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکوال منتقل کر دیا گیا۔ وہاں مظفر گڑھ میں پولیس وردیوں میں ملبوس ملزمان کی جانب سے ٹرک سے کروڑوں روپے مالیت کی چاندی لوٹنے کا واقعہ ٹریس کر لیا گیا۔ ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ کے مطابق 9 مئی کو ملزمان نے ٹرک روک کر تلاشی کے بہانے ڈرائیور سے 1 لاکھ روپے سے زائد نقدی اور 18 کلو گرام چاندی لوٹ لی تھی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ سٹی میں درج کیا گیا، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 4 پولیس اہلکاروں سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے لوٹی گئی رقم تقریباً 1.25 کروڑ روپے مالیت کی چاندی برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ گرفتار 4 اہلکاروں کو ملازمت سے برخاست کرنے کی کارروائی بھی شروع کر دی گئی۔ نصیر آباد پولیس کا نوناری محلہ میں جوئے کے اڈے پر چھاپا، متعدد جواری گرفتار، تاش، نقدی اور جوئے میں استعمال ہونے والا سامان برآمد کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق چھاپے کے دوران موقع سے تاش، نقدی اور جوئے میں استعمال ہونے والا دیگر سامان بھی برآمد کیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ نصیر آباد راؤ فیاض احمد کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف جوا ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا علاقے سے جرائم کے خاتمے کے لیے کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیصل آباد پولیس کی بڑی کامیابی، لائل پور ڈویژن میں رواں سال 390 مقدمات کے ملزمان گرفتار، 2 کروڑ 92 لاکھ روپے سے زائد مال مسروقہ برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کیا گیا۔ پریس کانفرنس کے دوران مقدمات کے مدعیان کو بھی مدعو کیا گیا اور برآمد شدہ مال مسروقہ اصل مالکان کے حوالے کیا گیا۔ سی پی او تنویر حسین نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں ٹیم ورک کا نتیجہ ہیں۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور کرائم کی شرح میں مزید کمی کے لیے مؤثر گشت، سی سی ٹی وی مانیٹرنگ اور ایلیٹ و ڈولفن فورس کی کارروائیوں کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ رینالہ خرد کے نواحی گاؤں 22 میں چوری کی بڑی واردات، نامعلوم چور تاجر کے گھر سے 4.5 لاکھ روپے نقدی، سونا اور قیمتی سامان لے اڑے۔ چوری کی واردات سامنے آنے پر اہل خانہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، جبکہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد نامعلوم ملزمان کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں اور چوروں کی تلاش جاری ہے۔ گڑھا موڑ میں چوری کی واردات، نامعلوم چور شہری بنارس کے گھر سے زیورات، نقدی اور قیمتی سامان لے اڑے۔ چور گھر میں داخل ہوئے اور زیورات، ہزاروں روپے نقدی سمیت دیگر قیمتی سامان چوری کر کے موقع سے فرار ہو گئے۔ واردات کے بعد متاثرہ خاندان نے پولیس کو اطلاع دی، جس پر تھانہ پولیس موقع پر پہنچی۔ پولیس اہلکاروں نے جائے وقوع سے شواہد جمع کی اور نامعلوم ملزمان کی تلاش شروع کر دی، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ خبر ہے ساہیوال سے، جہاں 3 مسلح ڈاکوں کی ناکہ لگا کر لوٹ مار، جیل پولیس ملازم سمیت 10 ڈاکیروں سے 1,89,300 روپے نقدی، موبائل فون اور اہم دستاویزات چھین لیے۔
पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक डाकुओं ने जेल पुलिस के मुलाजिम समेत 10 अफराद से 1,79,300 रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और अहम दस्तावेजात छीन ली। वारदात के दौरान मुसल्लह डाकुओं ने राहगीरों के हाथ पांव बांध कर उन्हें एक जगह फेंक दिया और लूट मार करके फरार हुए। इत्तला मिलते ही कमीर पुलिस, CCD पुलिस और भारी नफरी मौका पर पहुंची। पुलिस ने जयबुकुआ का जायजा लेने के बाद शवाहिद इकट्ठे की और फरार डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। फिरोजवाला में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना कोट अब्दुल मालिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आइस डीलर को गिरफ्तार करके 1 किलो 500 ग्राम आइस बरामद की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 1 किलो 500 ग्राम आइस बरामद हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मनशियात फरोश तालीमी इदारों समेत मुख्तलिफ मकामात पर आइस फरोख्त करता था। दूसरी जानिब टेक्सला में मारूफ टिकटॉकर आयशा फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक भाई और 15 साला बहन जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। FIR के मुताबिक मकतूला के मोबाइल फोन पर काशिफ नामी शख्स की कॉल आई थी, जिसके बाद वो घर से रवाना हुई, जबकि वालिद ने बाज़ अफराद पर शुबा और साबिका धमकियों का भी जिक्र किया। पुलिस ने वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि ज़राए के मुताबिक मुबैना माली लेन देन का तनाज़ा भी सामने आया और 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। जंग में जहनी माजूर बच्ची से मुबैना ज्यादती का अफसोसनाक वाक़या। DPO के नोटिस पर मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। दूसरी जानिब मुतासिरा बच्ची के अहले खाना ने इल्जाम आयद किया कि मकामी बासर अफराद उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव और धमकियां दे रहे हैं। खानदान के मुताबिक मुकदमा वापस न लेने की सूरत में घर से निकालने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मुतासिरा बच्ची के खानदान ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेते हुए उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और वाक़े की शफाफ तहकीकात यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। पेट्रोलिंग पुलिस पाकपतन की कार्रवाई। सेफ सिटी कैमरे की निशानदही पर नाकाबंदी के दौरान जाली नंबर प्लेट वाली कार पकड़ी गई। पेट्रोलिंग पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए गाड़ी और इसमें सवार मुलजिम को तहवील में ले लिया। मुलजिम और गाड़ी को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना डलोरियाम पुलिस के हवाले किया गया, जबकि हुकाम ने कहा कि शाहराहों को महफूज बनाने और मशकूक गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला बिला इम्तियाज जारी रहेगा। अक़लियती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के फौरी हल पर जोर। पार्लिमानी वर्किंग ग्रुप के इजलास में हैदराबाद रेंज के 9 अजला में 3642 केसेस की तफसीलात पेश की गई। इजलास में जबरी मजहब तब्दीली और कम उम्री की शादी की रोकथाम, इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़, बैनुल मज़ाहब हमाकी और सरकारी इदारों पर 5% अक़लियती कोटे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि अक़लियतें पाकिस्तान की बराबर की शहरी हैं और उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और मुआशरे की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। और वहाँ बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें शहरियों की ज़मीन और जायदाद से मुतालिक मुख्तलिफ नौयत के तनाज़ात और शिकायत की समाअत की गई। इजलास में दरख्वास्त गुजारों के केसेस सुने गए, जबकि ज़मीन की मलिकियत, कब्जा, इंतकालात और दीगर अराज़ी मामलात से मुतालिक रिकॉर्ड और हक़ाइक़ का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान से केसेस के बारे में ब्रीफिंग ली और हिदायत की कि शहरियों के मामलात में कानून और मेरिट के मुताबिक कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। उधर मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में बुनियादी तरबीती कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान की 14वीं पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पासिंग आउट परेड में 48 ख़वातीन अफसरान समेत 439 अफसरान ने बुनियादी तरबियत कामयाबी से मुकम्मल की और अपनी नई जिम्मेदारियां ईमानदारी, फर्जशनासी, पेशावराना महारत और अवामी खिदमत के जज्बे से अदा करने का हल्फ उठाया। खिताब करते हुए एडिशनल IG अशरफ जुबैर ने कहा कि शाहराहों को महफूज बनाना मोटरवे पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है, जबकि ईमानदारी, खुश अखलाकी और कानून की यकसा अमलदारी इदारे की पहचान है। गुजरात में DPO फैसल शहजाद ने DSPs और SHOs के साथ तारफी मीटिंग की, जिसमें जिला में अमन अमान और जराइम की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। DPO ने अफसरान को जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई और क्राइम कंट्रोल के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई में मेरिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और किसी शहरी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अफसरान को आवाम के साथ खुश अखलाकी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह देने की भी हिदायत की गई।
डीजी पंजाब पोर्ट अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के हुक्म पर गुजरात के सर्विस मोड और लाला मूसा में कार्रवाइयां की गई। कार्रवाई में लाला मूसा के स्क्रैप गोदाम में खुले ऑयल का कारोबार सामने आने पर लोड रिक्शा ड्राइवर की निशानदही पर छापा मारा गया और 1200 लीटर खुला ऑयल जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर 1480 लीटर खुला ऑयल, 340 किलो बैटरी वेस्ट और गाड़ी जब्त की गई, जबकि जालसाजी पर 2 मुकदमात भी दर्ज कराए गए। हब में पीपल्स पार्टी रहनुमा मीर अकरम बलोच आवारानी की ट्रांसपोर्टर्स के मरकजी चेयरमैन मीर नवाब मेगल से मुलाकात, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली मुशावरत की गई। इस मौका पर ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आइंदा के लाहे अमल पर भी मुशावरत की गई। मुलाकात में इस अज़्म का इजहार किया गया कि ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका फोरम्स पर भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी और उनके जायज़ मुतालिबात के हल के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे। कमीर शरीफ हाईवे के दरमियान मौजूदा बिजली के पोल शहरियों के लिए खतरा बन गए। नए पोल नस्ब होने के बावजूद तारे मुंतकिल न हो सकी। शहरियों के मुताबिक पुराने पोलों पर मौजूद तारे भी खस्ताहाल हैं और उनकी वजह से मुतादिद छोटे मोटे हादसा पेश आ चुके हैं। शहरियों ने वापडा और मुतल्लिका हाईवे हुकाम से मुतालबा किया कि बिजली की तारें फौरी तौर पर नए पोल्स पर मुंतकिल करके हाईवे के दरमियान मौजूद पोल हटाए जाएं। डेरा मुराद जमाली से गुजरने वाली खस्ताहाल नेशनल हाईवे शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। शहरियों के मुताबिक शाहराह की खराब सूरत हाल के बायस आए रोज ट्रैफिक जाम और मुश्किलात का सामना है, जबकि मुतादिद हादसात भी पेश आ चुके हैं। मकामी अफराद ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ज़िले इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हुए कहा कि निकासी आप के नाकिस निज़ाम और मुबैना गफलत के बायस शाहराह तेजी से टूट फूट का शिकार हो रही हैं। शहरियों ने फौरी मुरम्मत, निकासी आप के मौसर इंतजाम और जिम्मेदार इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेने का मुतालबा किया ताकि मजीद जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। घारू क्रीक पर कायम बरतानवी दौर का तारीखी पत्थर का पुल मुसलसल हैवी ट्रैफिक की आमदरफ्त के बायस ज़बू हाली का शिकार होने लगा। शहरियों के मुताबिक रेत, बजरी और दीगर सामान से लदे भारी डंपर की मुसलसल आमदरफ्त से पुल के सतूनों और महराबों को नुकसान पहुंच रहा है। समाजी रहनुमाओं ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि तारीखी पुल का माहिरीन आसार कदीमा और स्ट्रक्चर के माहिरीन से फौरी जायजा कराया जाए। शहरियों का कहना है कि भारी ट्रैफिक के लिए करीब नया पुल तामीर करके कदीम पुल को सिर्फ पैदल और सियाती मकासद के लिए मुख्तस किया जाए, जबकि घारू क्रैक को भी सियाती मरकज के तौर पर तरक्की दी जाए। नाज़रीन, डस्का में स्टेडियम रोड मुबीन चौक पर सीवरेज पाइपलाइन की खुदाई 2 माह बाद भी मुकम्मल न हो सकी, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुतासरा शहरियों ने कहा कि तरक्याती काम को तवील अरसे तक अधूरा छोड़ने से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर बल्दियात पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की अपील की है। इलाका मुकीनों ने मुतालबा किया कि काम में मुबैना गफलत बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके मनसूबा जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर के जरिए जल्द मुकम्मल कराया जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, जड़ाबाला चौक नंबर 240 में सुतरा पंजाब प्रोग्राम के दावे अमली सूरत इख्तियार न कर सके। गलियों और नालियों में गंदगी के ढेर, शहरियों ने फौरी सफाई ऑपरेशन का मुतालबा किया। शहरियों का कहना है कि सफाई का मौसर इंतजाम न होने के बायस मसाइल में इजाफा हो रहा है और अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ठोल के मेन बाजार में गटर उबलने के बायस गंदा पानी सड़कों पर जमा, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूल रोड, रेशम गली और शमड़ा बाजार भी गंदे पानी की लपेट में आ चुके हैं। सड़कों पर पानी जमा होने से न सिर्फ शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है, बल्कि दुकानदारों का कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। दुकानदारों ने कहा कि गंदे पानी की निकासी के लिए ताहाल कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। म्यूनसिपल कमेटी और पब्लिक हेल्थ इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रेशम गली के दुकानदारों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गटर का पानी निकाल कर सड़कों की सफाई कराई जाए, बसूरत दीगर एहतजाज पर मजबूर होंगे। मुरीद के की आबादी अफजल कोट में गुज़श्ता 40 रोज से सीवरेज का बदबूदार और गंदा पानी गलियों में खड़ा है, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। शहरियों के मुताबिक गंदे पानी और ताफुन से न सिर्फ मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि बीमारियों के फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। अहले इलाका का बताना है कि मसले के हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया और मुंतखब नुमाइंदों को मुतादिद दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं, ताहम कोई अमली पेशरफ्त न हो सकी।
मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि अफसल कोर्ट में नकासियाब का मसला फौरी हल करके शहरियों को इस अजियत से निजात दिलाई जाए। गुजरात का शादेवाल रोड गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से ज़ेरे तामीर है, ताहम मंसूबा मुकम्मल होने के बाद शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अली नबीद से। जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ शादीवाल रोड, जहाँ सड़क की तमीर का काम तकरीबन 1 साल से जारी है, ताहम यहाँ काम की रफ्तार जो है सुस्त है। सड़क की मौजूदा सूरत हाल की वजह से शहरी परेशान है, और अगर बात की जाए आमदो रफ्त की तो वो भी बड़ी मुतासर है। गर्दो गुबार और दीगर मसाइल का सामना है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत परेशानी है भाई जान, 1 साल हो गया नाल अगे दुकानां ने साड़ियां ते कोई कारोबार नहीं, कोई कुछ नहीं, गुजरन भी नहीं होंदा बंदे कोल। किन्नियां दिहाड़ी बीबियां मर्द इत्थे ढैंदे ने, बड़ी बड़ी मसले मसाल बनदे ने। अगले दिन खड्डे दे विच मोटरसाइकिल वाले सीधे ही जा पे ने, बंदे बड़ी मुश्किल उन्होंने कढ़िया। काम बहुत सुस्त हो रहा ना, बहुत मट्ठी रफ्तार है। वेखो ना थोड़े जे फैसले तो कदों दे लगे ने, साल सारा हो चला है, रोड नूं खराब होए हैं ते काम ही नहीं किसी पासे लभदा है। कारोबार बंदे दे बिल्कुल ठप पे ने। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ के जो मकामी लोगों का ये कहना था, आपने शहरी की बात भी सुनी कि अरसा तवील गुजरने के बाद भी सड़क मुकम्मल ना हो सकी। इनकी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और मुतलका हुकाम से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल करवाया जाए। जी नाज़रीन, नौशहर फेरोज की टाउन कमेटी मठियानी में सफाई सुथराई का नाकिस निज़ाम शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गया। शहर के 10वें वार्ड्स में जगह जगह कचरे के ढेर और गंदा पानी जमा होने से तापुन फैल रहा है, जबकि शहरियों को आमदरफ्त में भी दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ एम हसन सोमरू। मठियानी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकस दिखाई देता है। गली मोहल्लों में कई रोज तक कचरा नहीं उठाया जाता, जिसके बाद ताफुन और बदबू से शहरी शदीद परेशान है। अब्जी मोहल्ला, मलक मोहल्ला, सुमरा मोहल्ला और देगर मोहल्लों में गंदगी के ढेर शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। टाउन कमेटी का माहाना बजट 1 करोड़ रुपए से जायद होने के बावजूद बुनियादी सहूलत फराहम नहीं किए जा रहे हैं, जिस पर शहरियों का कहना है। आप और हम मठियानी टाउन में खड़े हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं ना जो यहाँ से सिलेक्टेड किए हुए, वो बताते हैं कि हम इसको तालके का दर्जा दिलाएंगे। भाई 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा तुम लोग बजट ले रहे हो, कोई भी एक्शन नहीं है। चेयरमैन भाग गया है, चेयरमैन जाहिर नहीं है, काउंसलर्स भाग गए हैं, काउंसलर जाहिर नहीं है। लेकिन वो सारी जो भी बजट आती है पता नहीं कहाँ चली जाती है। हमें कोई मुतालबा करेंगे, हमारा मुतालबा ये हमें कोई लालच नहीं है, हमें बस अपनी गलियों का काम करा के दें, हम बस यही चाहते हैं उनसे। शहर की मुतअद्दिद गलियां आज भी तामीर ना हो सकी, कच्ची और टूट फूट का शिकार रास्ते शहरियों के लिए अजाब बन गए हैं। दूसरी जानिब बलदियाती नुमाइंदे के 4 साल मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी है। हम शहरियों का कहना है कि मसाइल हल होने के बजाय मजीद बढ़ गए हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि टाउन कमेटी मठियानी की बजट और सफाई के निज़ाम का जायजा लेकर शहर में फौरी सफाई, नकासी आब और सड़कों की तमीर के इकदाम किए जाए। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सोमरू, टीवी टुडे, नौशहर फेरोज, मठियानी। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अभी आपको बताएं, सादिकाबाद में एथेनॉल फैक्ट्री के क़याम के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल और एहतजाज, सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। एहतजाज में शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों से काफिलों की चौंग नवासाबाद आमद का सिलसिला भी जारी रहा, जबकि सैकड़ों शहरियों ने एहतजाज में शिरकत की। रुकन सूबाई असम्बली सरदार मुमताज़ अली चौंग की जानिब से दी गई एहतजाजी कॉल पर मुजाहिरीन ने एथेनॉल फैक्ट्री के मनसूबे पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया और इसे रोकने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि मुतालबा तस्लीम न किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा, जबकि अवाम ने अपने मुतालबात के लिए आईनी और जमहूरी जिद्दोजहद जारी रखने का 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। सखर में खोसा बरादरी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत की मुबैना गिरफ्तारी के खिलाफ सैकड़ों अफराद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए सेठा खान खोसू की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि बच्चों के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और बरादरी को मुबैना पुलिस दबाव से निजात दिलाई जाए।
मीरपुर माथेलो में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के वेटिंग उम्मीदवारों ने सिटी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। एहतजाजी उम्मीदवारों ने मुतालबा किया कि नई भर्तियों का अमल शुरू करने से कबल वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को उनका हक दिया जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत और पुलिस के आला हुकाम से अपील की कि मामले का फौरी नोटिस लेकर ऑफर ऑर्डर्स जारी किए जाएं। उम्मीदवारों ने कहा कि तवील इंतजार के बायस उनमें शदीद बेचैनी पाई जाती है और वो अपने जायज़ हक के लिए आवाज़ उठाने पर मजबूर हैं। गुजरांवाला में टीवी टुडे की खबर पर इंतजामिया का फौरी एक्शन। गोंदलावाला में कचरे के ढेरों की सफाई शुरू कर दी गई। टीवी टुडे पर खबर नशर होने के बाद मुतल्लिका हुकाम ने फौरी एक्शन लेते हुए इलाके में सफाई सुथराई का काम शुरू करवा दिया। कचरे के ढेरों की सफाई शुरू होने पर अहले इलाका ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अवामी मसले की बरवक्त निशानदेही के बाद इंतजामिया का अमली इकदाम काबिल तहसीन है। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की कि सफाई का यह सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाएगा ताकि उन्हें साफ सुथरा माहौल मैसर आ सके। साहिवाल का कदीमी सदर बाजार मॉडल बाजार बनने के आखिरी मरहल में दाखिल। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद पार्किंग का मसला बरकरार, ताजिरों को कारोबार मुतासिर होने का खदशा है। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ राना सुहेल इकबाल। सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक साहिवाल के कदीमी सदर बाजार की अपग्रेडेशन का अमल जारी है। तो इसको एक मॉडल बाजार बना दिया गया। यहाँ पर जो डेवलपमेंट की गई है उसमें यहाँ पर साइन बोर्ड लगाए गए, यहाँ पे कलर स्कीम एक की गई, जहाँ पर प्लांटर खूबसूरत बना दी गई, जहाँ अम्ब्रेला बनाई गई है, तो वो यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन बेशुमार की गई है। तो ये इटालियन बाजार का मंजर पेश करता है। मेरे पास यहाँ पर एक ताजर हज़ार भी अक्सर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इस बाजार के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, आपने जिस तरह हमको बताया कि ज़ाहिर बात है किसी भी मुल्क की जो तरक्की होती है उसका जो पहला बुनियादी असूल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग्स होती हैं, ब्यूटिफिकेशन होती हैं, सफाई होती है। चलें ठीक है, हो गया, पूरे पंजाब में हो रहा है, सिर्फ साहिवाल ये सदर बाजार की हद तक नहीं है, लेकिन इसमें हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हम एक यानी कि समझते हैं कि ये काम होना चाहिए, आपके मैं प्लेटफॉर्म के ज़रिए पहुँचाना चाहता हूँ वज़ीर आला पंजाब की, ताकि ये काम जल्द मुकम्मल हो। सबसे एक बात, पहली बात तो ये है कि 2 साल से ये काम जो है मुसलसल कंस्ट्रक्शन में और काफ़ी स्लो चल रहा है। लेकिन जब हमारी इंतजामिया से बात हुई है, उनका कहना ये तकमील के आखिरी मराहल में है। उनकी एक और इनकी जो कि तहफ़्फ़ुज़ात पाया गया, इनका स्टैंड का जो कि बाइक स्टैंड है यहाँ पे वो नहीं है। इनका ये कहना है कि हमारे खरीदार दूर दराज से कस्टमर आते हैं, उनको बाइक लगाने में मतलब उनको वहाँ पे स्टैंड मुयसर नहीं है। इनका चाहिए कोई ऐसा स्टैंड हो जहाँ पर कारें बाइक वगैरह वहाँ पे खड़े करके जहाँ पे बाजार में एंट्री हो सके और यहाँ से आसानी से वो अपनी शॉपिंग कर सके। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं, नवाबशाह में रोटरी क्लब की 61वीं इंस्टॉलेशन तकरीब सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रोटरी क्लब सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर शहजाद साबिर ने नवाबशाह में ई लर्निंग सेंटर के क़याम, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में आगा खान अस्पताल के ताउन से $80,000 की लागत से क्लिनिक सेंटर और निजी आंखों के अस्पताल के लिए जदीद मशीनरी फराहम करने के मनसूबों से आगाह किया। तकरीब में थैलेसीमिया सेंटर के लिए एम्बुलेंस फराहम करने और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और ज़िला भर में शजरकारी शुरू करने के ऐलानात भी किए गए। और यहाँ शामिल करेंगे शॉर्ट ब्रेक। अभी आपको बताएं, लोधरा में म्यूनिसिपल कमेटी के मेहनती एहलकार शेख साबिर अली की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब, असिस्टेंट कमिश्नर असगर लगारी ने खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मज़ीद जानते हैं आमिर शबीर से। जी बिल्कुल, इस वक्त लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में म्यूनिसिपल कमेटी में एक एहलकार जो है, 4 एहलकारों के हमरा शेख साबिर अली की रिटायरमेंट हुई, जिसमें पूरे डिपार्टमेंट ने उनको जो है अप्रिशिएट भी किया। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का असगर इकबाल लगारी साहब ने उनकी खिदमात को सराहा। हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या इज़ारे ख्याल रखते हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, मैंने इनकी खिदमात को जो सराहा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। मेरा तो एक्सपीरियंस 1 साल 13 महीने का है, मैंने काम किया यहाँ पे, तो इस दौरान मुझे इनकी कोई कंप्लेंट नहीं आई। जो काम इनके ज़िम्मे लगाया, इनकी एक तो होती है ना इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बड़ी स्ट्रांग थी। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी किसी भी डिपार्टमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये चीज़ें निकाल के ले आए। दूसरी बात यह है कि मुझे अभी बता रहे थे कि पूरे टेन्योर में इनकी सस्पेंशन नहीं है। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस लेवल के ऑफिसर्स की किसी न किसी स्टेज पे सस्पेंशन इस तरह के मामला चलते रहते हैं। तो उसके बाद काम अच्छा किया इन्होंने,
اور ان کی آج ریٹائرمنٹ پہ جس طرح سے لوگوں نے, ہمارے جو ڈپارٹمنٹ نے, ہمارے جو میونسپل کمیٹی کے جو عملے نے پارٹیسپیٹ کیا, مجھے لگتا ہے کہ واقعی لوگ دل سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اور آپ لوگ بھی موجود ہیں, ہمارے میڈیا پرسن, سول سوسائٹی کے لوگ. ان کی خدمات کو ہم نے خراج تحسین بھی پیش کیا ہے, اور وہ سب سے بڑی بات ان کی یہ دیکھی گئی ہے کہ پورے ٹینور میں ان کی کوئی سسپینشن نہیں ہے, اور ہم نے ان کو انوائٹ کیا کہ اس ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ میرے دفتر بھی آ کر بیٹھ سکتے ہیں, اور ان کی خدمات ہم لینے کے لیے وہ باقاعدہ طور پر میونسپل کمیٹی بھی آئیں. جی. احمد پور سیال میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر 12 مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی پروقار تقریب ہوئی. شادیوں کی تقریب میں مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والی 12 مستحق اور یتیم بچیاں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر اپنے گھر کو گئیں. تقریب میں شریک افراد کا جوش و خروش دیدنی تھا اور خوشیوں بھرا ماحول قائم رہا. یو کے سے تعلق رکھنے والے فاؤنڈیشن کے سربراہ مولانا اعجاز شامی نے کہا کہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے 12 جوڑوں کی شادیوں کا اہتمام کر کے بیک وقت 24 گھروں میں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کی گئی ہے. کھپرو کی رحمانی مسجد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد. عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں عبدالرزاق کی اس رپورٹ میں. کی نگرانی محمد ابراہیم راجڑ نے کی, جبکہ صدارت جماعت اہل سنت کے صدر مفتی احمد علی سکندری کر رہے تھے. محفل میلاد میں نعت خوانوں نے نعت کے نذرانے پیش کیے, جبکہ اعزازی خطاب مولانا سیف اللہ سکندری نے کیا. عظیم الشان محفل میلاد سے خصوصی خطاب مفتی محمد اسحاق سکندری نے کیا اور آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی. محفل میلاد میں محمد اقبال چوہان, جان محمد مہر, سرور راجڑ, حافظ قاسم راجڑ, عبدالرحیم راجپوت, محمد رضوان راجپوت سمیت عاشقان رسول نے کثیر تعداد میں شرکت کی. جبکہ دوسری جانب قریشی ہاؤس پر محمد شہزاد قریشی اور راحل قریشی کی جانب سے محفل میلاد کا پروگرام منعقد کیا گیا. محفل میلاد سے مفتی احمد علی سکندری نے خطاب کیا. حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ اس موقع پر پرچم کشائی کی تقریب بھی منعقد کی گئی. پروگرام میں پاکستان کی خوشحالی, سلامتی اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئی, جبکہ پروگرام کا اختتام صلاۃ السلام پر کیا گیا. کیمرہ مین فضل الرحمان کے ساتھ عبدالرزاق راجپوت, ٹی وی ٹوڈے کھپرو. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے.